Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 3, Indefinite Integration, Exercise 3.2b. Question number 1, evaluate the following. So this question is continue. Now question number 12. Let I equal to integral of 1 upon 4x square minus 20x plus 17 into dx. So dear students, attention here. What is the main part? What is the important thing for this type of the integration? First, you should understand in the integration, integral of 1 upon 4x square minus 20x plus 17. We see that coefficient of x square is 4. So first, we should take 4 common in the denominator. 4 common in the denominator because coefficient of x square must be 1. Now taking 4 common from the denominator, so it will be 1 by 4 out of integral of 1 upon x square minus 5x plus 17 by 4. So 4 taking common, so 4x square upon 4, that is x square, minus 20x upon 4 minus 5x plus 17 by 4 as it is into dx. So after taking common, what should we do? Now we should take coefficient of middle term with multiplied by half, like this. So half into coefficient of middle term is minus 5, or you can say only 5, because here it is whole square, so no effect from the negative or positive sign. So we see that coefficient of x is minus 5. So we should check what is half into coefficient of x whole square. It is half into minus 5 equals minus 5 upon 2 square, and minus 5 upon 2 square becomes 25 upon 4. So adding and subtracting 25 upon 4 in the denominator. ये हम लोग क्यों करते हैं? Why it is? Because for the completing square, you have studied in school level, that is 9th or 10th standard. For completing the square quadratic equations, adding and subtracting half into coefficient of middle term, or you can say half into coefficient of x the whole square. So half into coefficient of middle term whole square or half into coefficient of x the whole square, we should add and subtract in the given quadratic equation, given quadratic term or given integration term in the denominator. So see this step seriously. 1 by 4 into integral of 1 upon x square minus 5x. These two terms will be same. After that we add 25 upon 4 and subtract also 25 upon 4 plus 17 by 4 given constant term from the question into dx. So this will be x square minus 5x plus 25 upon 4 minus 25 upon 4 plus 17 by 4 into dx. Now simplify last two terms. This is minus 25 upon 4 and this is 17 by 4. So minus 25 plus 17 is minus 8 upon 4. Okay. And these first three terms, these x square minus 5x plus 25 upon 4 is the perfect square of x minus 5 upon 2 the whole square. When we expand it, we get x square minus 5x plus 25 upon 4 again. Means a minus b whole square becomes this, or expanded form can be written as x minus 5 upon 2 the whole square. So therefore I equal to 1 by 4 into integral of 1 upon x minus 5 upon 2 whole square minus 8 upon 4 into dx.
Now 8 upon 4 is 2, and this 2 can be written as square of root 2, because we need x square minus a square form in the denominator. So I equal to 1 by 4 into integral of 1 upon x minus 5 upon 2 whole square as it is from here, and this is 8 upon 4, that is 2, and that 2 can be written as root 2 the whole square into dx. Now our integral is in the form of x square minus a square into dx. So what is the integral formula for x square minus 1 upon x square minus a square into dx is 1 by 2a log of x minus a upon x plus a plus c. This is formula. So using this formula we get 1 by 4 as it is into 1 upon 2a, that is root 2, 2 into root 2 log x minus 5 upon 2 minus root 2 upon x minus 5 upon 2 plus root 2, that is x, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या है x, यहाँ से देखो दिस इज x, ये पूरा x टर्म है और ये पूरा क्या है a है, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a, जैसा कि मैंने अभी फार्मूले में एक्सप्लेन किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. So dear student, you should learn the formula from formula list which is already given in my previous videos. Now simplify it. So we get here I equal to 1 upon 8 root 2 into log of, look, this denominator is 2 only one time here, so upon 2 here, that is 2x upon 2 and root 2 upon 2 root 2 upon 2, or you can say by cross multiplication. So we get log of mod of 2x minus 5 minus 2 root 2 upon 2x minus 5 plus 2 root 2 plus constant of integration. So modulus or bracket you can use here. So final answer becomes I equal to 1 upon 8 root 2 into log of mod of 2x minus 5 minus 2 root 2 upon 2x minus 5 plus 2 root 2 modulus closed plus c. This is the final answer for this question. Now see question number 13. Let I equal to integral of 1 upon 5 minus 4x minus 3x square into dx. तो अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि देखो उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्लस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का टर्म जो है पॉजिटिव था, फर्स्ट था, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, नेगेटिव है. तो हम इसमें साइन नेगेटिव कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एज इट इज सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास स्क्वायर रूट का यहाँ पर टर्म आने लगेगा तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन नहीं कर सकते. तो देखो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx. तो अकॉर्डिंग टू इट्स रूल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1. तो अभी यहाँ पर क्या है 3, यू विल सी द कोफिशिएंट ओनली. तो यहाँ पर अगर 3 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो वी शुड टेक कॉमन 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आउट ऑफ इंटीग्रल इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया 1, एक्चुअल में -1 है, लेकिन यहाँ पर हम 1 अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए. अब इसके बाद क्या करते हैं, 5 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इट्स रूल. तो हाफ इंटू 4 बाई 3 द होल स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4, तो 2 बाई 3 द होल स्क्वायर becomes 4 upon 9. So adding and subtracting 4 upon 9 in the denominator. Therefore I equal to 1 by 3 into integral of 1 upon 5 upon 3 as it is plus 4 upon 9 minus 4 upon 9 minus 4 upon 3x minus x square into dx. Now 5 upon 3 plus 4 upon 9, adding these two terms we get 19 upon 9. So our integral becomes 1 by 3 into integral of 1 upon
19 upon 9, adding these two, we get 19 upon 9. Minus sign common from next three terms. 4 upon 9 plus 4 upon 3x plus x square into dx. Use proper bracket. Now, we have to write in the form of squares. So, I equal to 1 by 3 into integral of 1 upon, देखो root of 19 is prime, not perfect square. So, it is root 19 and 9 is perfect square. So, 9 के लिए हम क्या लिखेंगे 3. So, root of 19 upon 3 the whole square minus 4 upon 9 plus 4 upon 3x plus x square is the perfect square of x plus 2 upon 3 whole square into dx. Easily you can write these terms because it is a plus b whole square. We get x square plus 4 upon 3x plus 4 upon 9. Now we see that our integral is of the form 1 upon a square minus x square dx. So integral of 1 upon a square minus x square dx is 1 upon 2a log of mod of a plus x upon a minus x. तो हमें रूट 19 अपॉन 3 को a एज्यूम करना है और इंस्टेड ऑफ x वी राइट हियर x प्लस 2 अपॉन 3. ये पूरे टर्म को x फॉर्म एज्यूम करना है, x एज्यूम करना है इसको. ठीक है, तो i इक्वल टू 1 बाय 3 एज इट इज इंटू 1 अपॉन 2 इंटू a. देखो a की वैल्यू यहाँ क्या है, रूट ऑफ 19 अपॉन 3. तो 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू रूट 19 अपॉन 3 इंटू लॉग मॉड रूट 19 अपॉन 3, ये a हो गया, प्लस x मीन्स प्लस x प्लस 2 अपॉन 3 फ्रॉम हियर अपॉन रूट 19 अपॉन 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन 3 मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c. क्योंकि देखो ये ब्रैकेट जैसे ओपन होगा यहाँ पर तो माइनस x माइनस 2 अपॉन 3 बोथ विल बी नेगेटिव. आफ्टर दैट सिंप्लीफाइंग वी गेट 3 गोइंग बाय 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया. तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 19 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 19 प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट 19 माइनस 3x माइनस 2. यहाँ से एलसीएम मीन्स इसको 3x बाई 3 लिख सकते हो और यहाँ भी 3x बाई 3, तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी और डिनोमिनेटर कॉमन एंड कैंसिल. तो वी गेट लॉग ऑफ रूट 19 प्लस 3x प्लस 2 upon root 19 minus 3x minus 2 plus c which is constant of integration. जैसा कि इंटीग्रेशन के रूल में है कि हमें जैसे ही हम इंटीग्रल का पार्ट कंप्लीट करते हैं वी शुड राइट प्लस c which is known as constant of integration. और ये important thing है, if we do not write c तो marks will be cancelled. One more thing, dear students, if you are new on my channel, so please subscribe the channel first and then continue. Name of the channel, directly you can go on the channel by typing Rajendra's Teaching, RAJENDRA apostrophe S TEACHING. So Rajendra's Teaching. You can go directly on YouTube channel. Otherwise, follow the link. Now see question number 14. Let I equal to integral of 1 upon square root of 3x square plus 5x plus 7. Integral of 1 upon square root of 3x square plus 5x plus 7 into dx. So now differences are in the previous questions and this question are remaining questions. Here स्क्वायर रूट प्रेजेंट और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं था. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब देखते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू dx. We see that coefficient of x square is 3 here. So taking 3 common from the square root, कहाँ से कॉमन करोगे
करोगे फ्रॉम द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर से अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो दिस विल बी √3 आउट ऑफ इंटीग्रल, मीन्स 1/√3 कॉमन, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम लोग √3 कॉमन कर रहे हैं। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पर 1/√3। तो I इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 इंटू dx। देखो क्योंकि हम इसमें सब में क्या करते हैं 3 कॉमन किए, तो जहाँ पर नहीं है 3 वहाँ क्या कर लोगे डिवाइड। तो I इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 इंटू dx। नाउ इट इज इक्वल टू 1/√3 एज इट इज। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ये देखना है कि व्हाट इज द हाफ इंटू मिडल टर्म होल स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करेंगे। तो व्हाट इज हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू 5/3 द होल स्क्वायर, एंड हाफ इंटू 5/3 द होल स्क्वायर इज व्हाट, देखो 1 इंटू 5 5, 2 3 द 6, तो 5/6 द होल स्क्वायर इक्वल्स 25/36, 25/36. So adding and subtracting 25/36 in the denominator in the square root. So I equal to 1/√3 into integral of 1/square root of x² plus 5/3x plus 25/36 minus 25/36 plus 7/3. So we see that first 3 terms are perfect square of x plus 5/6 and remaining 2 terms सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का LCM। सो LCM इज 36, तो ये हो जाएगा -25 प्लस 84/36। तो -25 प्लस 84 becomes here 59 प्लस 59/36। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर I इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 59/36 इंटू dx। नाउ वी नीड हियर होल स्क्वायर टर्म, मतलब यहाँ भी ये नंबर का स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो 59/36 को स्क्वायर फॉर्म में क्या लिखोगे, √59/6 द होल स्क्वायर, क्योंकि देखो दिस इज प्राइम और दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। तो √59 मतलब ओनली स्क्वायर रूट इज ओनली इन द न्यूमरेटर अपॉन 6 होल स्क्वायर, तो हो गया 59/36। इट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस √59/6 द होल स्क्वायर इंटू dx। अब हमें यहाँ देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये टाइप के क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व किए थे, उसमें और इसमें डिफरेंस ये था, यहाँ पर 3 कॉमन करना पड़ा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज गिवन, और जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² वाज नॉट गिवन बाय द ऑथर, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं दिए गए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉमन करने के बाद अपना स्टेप सेम फॉलो किया और हम लोग पहुँच गए अभी I इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस √59/6 होल स्क्वायर। Using formula integral of 1/√x² plus a² into dx equal to log mod x plus √x² plus a² modulus closed plus c। तो ये अपना फॉर्मूला है log, और यू कैन से इन शॉर्ट log ऑफ x प्लस क्वेश्चन का मतलब जहां से हमने परफेक्ट स्क्वायर चेंज किया वहां से लेना है, ये शॉर्ट फॉर्म बार्ट करने का ट्रिक। सो I इक्वल टू 1/√3 इंटू लॉग ऑफ x का मतलब क्या है, x प्लस 5/6 प्लस x² प्लस a² मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ से जस्ट प्रीवियस स्टेप यहाँ पर हमें लिख लेना है। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर
plus root 59 upon 6 whole square modulus closed plus c. Now it can be written as I equal to 1 by root 3 into log mod x plus 5 upon 6 plus स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3। अब देखो ये स्टेप लिखने के लिए हमें इसको एक्सपैंड करने की और सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसी स्टेप को परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफ़र किया था तो हमें ये स्टेप मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे फिर ये स्टेप ही यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सपैंड और सिंप्लीफाई की कोई ज़रूरत नहीं। देयरफॉर आई इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इंटू लॉग ऑफ x plus 5 by 6 plus square root of x square plus 5 upon 3x plus 7 upon 3 from this step plus c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14 completed and this is the final answer for question number 14. Now see question number 5. Sorry. Now see question number 15. Let I equal to integral of 1 upon square root of x square plus 8x minus 20 into dx. So this question is very simple question. There is no coefficient of x square, that is 1 already 1 है, so no need to take common anything here. But we should check what is half into coefficient of middle term, that is 8, half into 8 whole square. So half into 8 is 4, 4 square is 16. So adding and subtracting 16 in the denominator. So therefore I equal to integral of 1 upon square root of x square plus 8x plus 16 minus 20, because this minus 20 is given already in the question. Therefore I equal to integral of 1 upon square root of x plus 4 whole square, and this minus 16 minus 20 becomes minus 36. The minus 36 is the minus as it is here, and 36 square of 6 into dx. Therefore I equal to integral of 1 upon square root of x plus 4 whole square minus 6 square into dx. So we see that our question is in the form of integral of 1 upon square root of x square minus a square into dx. So what is the formula for integral of 1 upon square root of x square minus a square into dx? Equals 1 upon equals log x plus under root x square minus a square plus c, means log x plus question. So this will be I equal to log x plus 4. देखो x की वैल्यू यहाँ क्या है, x plus 4 plus x plus square root of x plus 4 whole square minus 6 square plus c, means x square minus a square. जैसा फॉर्मूले का फॉर्मेट है ठीक वैसे ही लिखना है। हमें x को x plus 4 एज्यूम करना है और a को 6. So I equal to log mod x plus 4 plus square root of x plus 4 whole square minus 6 square modulus closed plus c. Therefore I equal to log mod x plus 4 plus x square plus 8x minus 20 plus c, which is constant of integration. So dear students, you should learn the formulae properly, then you will get exact answer. तो अपने एक्सपेंशन में या कहीं भी क्वेश्चन को फाइनल आंसर में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें प्रॉपर फार्मूला ऑलवेज बांट करके रखना चाहिए, और इसीलिए मैं अपने डियर स्टूडेंट को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन रिवाइज फार्मूला फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. Let I equal to integral of 1 upon square root of 8 minus 3x plus 2x square into dx. So it is equal to, what is coefficient of x square here? Coefficient of x square is 2. तो
इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव हियर. So it can be written as 2x square minus 3x plus 8 also. Otherwise, you should take common 2 from the square root. स्क्वायर रूट के अंदर से 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाई रूट 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस 19 अपॉन 16 माइनस 19 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. हमने सपोज करो कि यहाँ पर 2 कॉमन किया, पूरे टर्म से 2 कॉमन किया तो 1 बाई रूट 2 आउट. यहाँ पर क्या होगा? 4 माइनस 3 अपॉन 2x प्लस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज हाफ इंटू 3 अपॉन 2? हाफ इंटू 3 अपॉन 2 इज 3 बाई 4 होल स्क्वायर, राइट? So half into 3 upon 2, 3 by 4 whole square here. So 3 by 4 whole square is what? 9 by 16. So adding and subtracting 9 upon 16. Adding 9 upon 16, subtracting 9 upon 16 in the denominator. So I equal to 1 upon root 2 into integral of 1 upon square root 4 plus 19 upon, 4 plus 9 upon 16 minus 9 upon 16 minus 3 upon 2x plus x square into dx. It is equal to 1 upon root 2 into integral of 1 upon square root of x square minus 3 upon 2x plus 9 upon 16. देखो x square minus 3 upon 2x plus 9 upon 16. ये 3 टर्म्स एक साथ हमने कलेक्ट कर लिए. कौन कौन से? दिस, दिस एंड दिस. और इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया. x square minus 3 upon 2x plus 9 upon 16 minus 9 upon 16 plus 4 minus 9 upon 16 plus 4 as it is here into dx. Now first 3 terms are perfect square of what? Yes, x minus 3 upon 4 whole square. ये हो जाएंगे और इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है. देखो 16 4 जा 64, 64 माइनस 9 ये सब्ट्रैक्ट कर लेना है और अपॉन 16. तो दिस इज प्लस 64 एंड दिस इज माइनस 9. तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? इसको सिंप्लीफाई करके ले लोगे तो 64 माइनस 9 ये मिल जाएगा अपना प्लस 55. So therefore I equal to 1 by root 2 into integral of 1 upon square root of x square minus 3 by 2x plus 9 upon 16 minus 9 upon 16 plus 4. So this is the perfect square of what? X minus 3 upon 4 whole square minus 9 upon 16 plus 4. This is 64 minus 9 becomes 55 upon 16. Therefore I equal to 1 upon root 2 into integral of 1 upon square root of x minus 3 upon 4 whole square. देखो यहाँ से this is the first 3 term. First 3 term is the perfect square of x minus 3 upon 4 whole square plus this is 55 upon 16. So 55 is not perfect square. So this is root 55 upon 4 whole square into dx. Now we see that this is the type of 1 upon square root of x square plus a square into dx. So integral of 1 upon root x square plus a square into dx is log of mod of x plus root x square plus a square plus c. Therefore I equal to 1 by root 2 as it is into log mod x minus 3 upon 4 plus square root of x square plus 3 upon 2x plus 4 मॉडुलस क्लोज्ड प्लस सी. क्योंकि देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे पूरे टर्म को x माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस रूट 55 अपॉन 4 होल स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा? ये स्टेप आएगा. और ये स्टेप को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से जब हमने 2 कॉमन किया था तो एक्स स्क्वायर
माइनस 3/2x प्लस 4। तो ये स्टेप हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर I इक्वल टू 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4 modulus closed plus c. This is the final answer of question number 16. Now see question number 17. Let I equal to integral of 1 upon square root of x minus 3 into x plus 2 into dx. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि देखो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आने पर अब यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर टर्म नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो व्हाट वी गेट, सी दिस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3 into x minus 3x and minus 3 into plus 2 becomes minus 6. सिंप्लीफाइंग, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाइंग these two brackets and simplifying we get integral of 1 upon square root of x square minus x minus 6 into dx. तो अब हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मीन्स एक स्क्वायर टर्म में यहाँ पर मिल गया, एंड देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अदर देन 1। तो अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से फॉलो द कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल। तो इजिली यू कैन राइट इट हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1 और यू कैन राइट +1, हाफ इंटू, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हाफ इंटू -1 होल स्क्वायर इज हाफ होल स्क्वायर दैट इज 1/4, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/2 होल स्क्वायर बिकम्स 1/4। तो यही टर्म को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म इन द स्क्वायर रूट। तो नाउ सी नेक्स्ट स्टेप। Therefore, I equal to integral of 1 upon square root of x square minus x plus 1 upon 4 minus 1 upon 4 minus 6. So, first three terms are perfect square of x minus half the whole square minus 4 into 6, देखो minus 24 हो जाएगा। तो -1 minus 24 becomes minus 25 upon 4. तो -25/4 minus as it is, and 25/4 can be written as 5/2 the whole square into dx. So I equal to integral of 1 upon root x minus 1/2 whole square minus 5/2 whole square into dx. So we see that our integral is of the form 1 upon under root x square minus a square into dx, which is equal to log mod x plus under root x square minus a square plus c. So therefore I equal to log mod x, x means क्या है हमारा, x minus 1/2, तो x minus 1/2 plus x square minus x minus 6 modulus closed plus c। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखोगे, फिर इसको एक्सपैंड करोगे, तो उससे बेस्ट है कि हम ये स्टेप को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा, देयर इज नथिंग कॉमन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 यू कैन राइट इजिली हियर। तो देयरफॉर आई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So question number 17 over. Now see question number 18. अब 18th क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, फॉर्मेट में भी क्वेश्चन का जो 5 फॉर्मेट है, टाइप है, वो चेंज हो जाएगा, और इनको सॉल्व करने का रूल भी चेंज करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के रूल्स को चेंज करके फिर यहाँ पर देख सकते हो कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 प्लस
3 cos square x into dx। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखो। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई ट्रिगो फार्मूला या कुछ अप्लीकेबल है जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं क्ल्यू बता देता हूँ, जैसे भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है या बोथ प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, सो वी शुड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। जैसा कि देखो मैंने यहाँ रूल्स लिख भी दिया है कि डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट। So dividing by cos square x in numerator and denominator. So what we get here? Now see. Therefore I equal to integral of 1 upon cos square x, क्योंकि हम 1 को cos square x से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 upon cos square x is what? sec square x. Entire upon 4 upon cos square x, तो 4 upon cos square x क्या होगा? 4 into sec square x plus 3 cos square x upon cos square x becomes 3 ओनली, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर गेट कैंसल्ड इनटू dx। तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और ईच टर्म को डिवाइड करना है। ओके, तो वी गेट हियर I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 4 इंटू sec स्क्वायर x प्लस 3 इंटू dx। अब इसके बाद हमें न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x इंटू dx को एज इट इज रखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर का टर्म आएगा उसे हमें क्या करना है? tan स्क्वायर में चेंज कर लेना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। नाउ सी, तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू dx। क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है और यू कैन से आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। So I equal to integral of sec square x upon 4 into 1 plus tan square x plus 3 into dx. Therefore I equal to integral of sec square x upon, देखो 4 into 1 4 plus 4 tan square x plus 3. So 4 tan square x we write here and 4 plus 3 becomes 7. तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 इंटू dx। अब हमें क्या करना चाहिए इसको? अब देखो नाउ वी पुट tan x इक्वल टू t, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो पुट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides. So derivative of tan x is sec square x and derivative of t with respect to x will be dt upon dx. So taking dx on left hand side. Therefore sec square x into dx equal to dt। क्योंकि देखो sec square x into dx हमारे न्यूमरेटर में यहाँ पर प्रेजेंट है और हमने tan x को भी अभी t एज्यूम कर लिया, तो आवर इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी टी। क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया? डी टी, तो हमने डी टी यहाँ लिख लिया, तो 1 अपॉन और ये टी स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी टी। अब यहाँ पर देखो इस कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 4, ओनली 2 टर्म्स आर देयर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हमें कर लेना है इसको। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/4, ये क्या हो जाएगा? 7/4। तो 7/4 कैन बी रिटन एज √7 अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू डी टी। विदाउट कॉमन भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2t होल स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर। लेकिन वो ध्यान देना है कि जो फाइनल आंसर लिखते हो तो समटाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी डिनोमिनेटर में लिखना भूल जाते हो। इसके लिए अगर 4 कॉमन करके करते हो तो मिस्टेक होने का चांसेस लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। So I इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √7 अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू डी टी। Therefore I इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 1/a
ए क्या है, √7/2, तो 1/√7/2 इंटू tan इनवर्स t अपॉन √7/2 प्लस सी। क्योंकि हमारा फार्मूला किस टाइप का यहाँ पर, इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म 1/x² प्लस a², इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमने यहाँ पर फार्मूला लिख भी दिया है, यहाँ से अपना रेफर कर सकते हो कि सिंस इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx इक्वल्स 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 इंटू 1/√7/2 इंटू tan इनवर्स t अपॉन √7/2 प्लस सी। अब ये देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 1/2√7 ओनली रिमेनिंग और दिस 2 गोज टू न्यूमरेटर, ये हो जाएगा 2t अपॉन √7 और हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर I इक्वल टू 1/2√7 इंटू tan इनवर्स 2 tan x, क्योंकि 2t हो जाएगा, 2 गोज टू न्यूमरेटर, 2 tan x अपॉन √7 प्लस c। So this is the final answer for question number 18. Now see question number 19. Let I equal to integral of 1/cos 2x plus 3 sin square x into dx. Integral of 1/cos 2x plus 3 sin square x into dx. अब इसमें देखो cos 2x है और यहाँ 3 sin स्क्वायर है, तो बेस्ट ये होगा कि हम cos 2x का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें sin स्क्वायर आता हो। तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, दिस इज फार्मूला फॉर cos 2x। ठीक, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फार्मूला हो गया इसका। तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x इंटू dx। So 3 sin square x minus 2 sin square x is what? Sin square x. So this is equal to integral 1/1 plus sin square x into dx. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूल्स फॉलो करते हैं फिर से, क्योंकि हमारे रूल में क्या है, sin square x प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, तो वी शुड डिवाइड बाय cos square x in numerator and denominator. So dividing by cos square x in numerator and denominator we get, देखो I इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos square x is sec square x upon 1/cos square x here, that is sec square x, plus sin square x upon cos square x becomes tan square x. तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में sec square x into d square x नो चेंज, बट इन द डिनोमिनेटर sec square x को हमें tan square के फॉर्म में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी sec square x इक्वल टू 1 प्लस tan square x। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल sec square x अपॉन, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस tan square x, तो 1 प्लस tan square x becomes 2 tan square x प्लस 1 into dx. तो I इक्वल टू इंटीग्रल sec square x अपॉन 2 tan square x प्लस 1 into dx. पुट tan x इक्वल टू t, अब हमें tan x को क्या लेना है, t, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides. Therefore sec square x into dx equal to dt, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम सब्स्टिट्यूशन लिया था कि sec square x into dx equal to dt. Therefore I equal to इंटीग्रल 1/2t स्क्वायर, देखो इसको हमने t लिया है तो 2 इंटू टी स्क्वायर हियर प्लस 1, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या हुआ, ये पूरा dt हो गया, तो dt हमने साइड में यहाँ पर लिख दिया है, तो 1/2t स्क्वायर प्लस 1 into dt. After that, taking 2 common from the denominator, तो I equal to 1/2 into integral of 1/t स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ, 2 कॉमन करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, तो हाफ कैन बी रिटन एज 1/√2 होल स्क्वायर into dt, which is integral is of the type 1/t square plus 1/√2 whole square is 1/x square plus a square into dx, that is 1/a into tan inverse x by a plus c.
जैसा कि हमने फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था। तो यूजिंग सेम फार्मूला, दिस फार्मूला, यूजिंग सेम फार्मूला इन दिस क्वेश्चन वी गेट, यही फार्मूला अप्लाई करना है। Therefore I equal to this 1 by 2 as it is into 1 upon root 2, this is value of a, into tan inverse t upon a, that is t upon 1 upon root 2 plus c. So here we see that this will be root 2, तो अपना जो यहाँ पर टर्म है वो क्या आ जाएगा 1 upon root 2। So it is equal to 1 by 2 into 1 upon root 2. So simplifying we get. So this root 2 goes to numerator. So this will be root 2 upon 2. ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा तो रूट 2 अपॉन 2, और रूट 2 अपॉन 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू टैन इनवर्स, एंड दिस रूट 2 ऑल्सो गोज टू न्यूमरेटर, तो रूट 2 इंटू टी, बट टी इक्वल टू टैन एक्स, तो रूट 2 इंटू टैन एक्स अपॉन 1 प्लस सी। Therefore, I equal to 1 by root 2 into tan inverse root 2 tan x plus c, constant of integration. तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, I equal to 1 upon root 2 into tan inverse root 2 into tan x plus c, constant of integration. Now, see question number 20. In 20th question, let I equal to integral of sin x upon sin 3x into dx. So dear students, here sin 3x given in the denominator, so we should apply sin 3 theta formula in the denominator. तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, since sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, since sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, ये रहा अपना फार्मूला। तो sin x upon sin 3x into dx can be written as I equal to integral sin x as it is from here, in the denominator sin 3x will be 3 sin x minus 4 sin cube x into dx। तो ये हो गया अपना फार्मूला। तो फार्मूला लिखने के बाद अब हमें क्या देखना है कि व्हाट इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर। तो दिस इज वेरी सिंपल, we see that sin x common in the denominator. So this is equal to integral of sin x upon sin x common, देखो sin x यहाँ से कॉमन कर लिया, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द ब्रैकेट 3 minus 4 sin square x into dx. Now this sin x going by sin x get cancelled, so this will be integral of 1 upon 3 minus 4 sin square x into dx, integral of 1 upon 3 minus 4 sin square x into dx। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो फिर से इसी क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इफ आवर इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c, मतलब डिनोमिनेटर में अगर sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है तो हमें, और कोई कांस्टेंट भी है या नहीं है, कभी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, बट sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स आर प्रेजेंट, आर ओनली sin स्क्वायर एक्स प्रेजेंट, आर ओनली cos स्क्वायर एक्स प्रेजेंट विथ सम डिनोमिनेटर सम कांस्टेंट। तो हमें वहाँ पर क्या करना है, ये टाइप के इंटीग्रेशन के लिए डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये कर लेना है। इसके बाद हमें सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर में मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हमेशा सेफ रखना है, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आएंगे जैसे सेक स्क्वायर या tan स्क्वायर मोस्टली, तो उस टर्म को हमें tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है सभी को, tan स्क्वायर एंड कांस्टेंट। फिर tan x को क्या लेना है, t लेना है, पुट tan x इक्वल टू t,
एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x जब करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये मिल जाएगा। तो वो वैल्यूज को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यूजिंग सेम प्रोसेस, सेम मेथड इन दिस क्वेश्चन, तो we get here I equal to integral of 1 upon 3 minus 4 sin square x into dx. Now dividing by cos square x in numerator and denominator, we get I equal to integral of 1 upon cos square x sec square x, 3 upon cos square x that is 3 into sec square x, क्योंकि 3 upon cos square x को क्या लिख सकते हो 3 into 1 upon cos square x, so this gives 3 into sec square x minus 4 इंटू यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ वी शुड कन्वर्ट दिस सेक स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स upon 3 multiplied by 1 plus tan square x minus 4 tan square x here into dx, because sec square x is 1 plus tan square x formula identity, so using that identity अब क्या करोगे 3 into 1 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो we get this step I equal to integral of sec square x upon 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x into dx. So 3 as it is, so integral of sec square x upon 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x, subtracting we get minus tan square x into dx. तो अब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट एंड tan स्क्वायर हो गया और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x और dx यहाँ पर, तो पुट tan x equal to t, differentiating with respect to x on both sides, we get sec square x into dx equal to dt, sec square x into dx equal to dt. Therefore I equal to integral of, अब देखो 3 और यहाँ पर क्या है sec square x dx, तो क्या हो गया dt, तो it can be written as 1 upon root 3 whole square because of 3, तो 3 को हमने रूट में चेंज किया, क्या हो जाएगा रूट 3 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ tan स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो आवर इंटीग्रल बिकम्स 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या फार्मूला कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो यूजिंग फार्मूला, तो हमारे पास यहाँ पर a इक्वल टू क्या मिला है रूट ऑफ 3 और x की जगह पर क्या है t, तो हम यही अपना फार्मूला यूज करते हैं। देखो फार्मूला मैंने यहाँ पर दे दिया है जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 2a इंटू लॉग mod a plus x upon a minus x modulus closed plus c, तो I इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 3, क्योंकि देखो 2a इक्वल टू व्हाट रूट 3, तो 1 अपॉन 2a इंटू लॉग a प्लस टी अपॉन a माइनस टी, मतलब a का वैल्यू क्या है रूट 3 प्लस टी और ये रूट 3 माइनस टी प्लस सी। बट ये आंसर हमें मिल तो गया, लेकिन ये आंसर किस फॉर्म में है टी के फॉर्म में है, तो समटाइम्स हमारे डियर स्टूडेंट कभी कभी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं, तो अटेंशन हियर डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज tan x, हमने टी को क्या अज्यूम किया था tan x, तो डोंट फॉरगेट इन द फाइनल आंसर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ टी। देयरफॉर I इक्वल टू 1 upon 2 root 3 constant will be same
into log mod रूट 3 प्लस tan x अपॉन रूट 3 माइनस tan x। क्योंकि देखो a की वैल्यू या t की वैल्यू यहाँ पर क्या है tan x और a की वैल्यू क्या थी रूट 3। तो log ऑफ mod ऑफ रूट 3 प्लस tan x अपॉन रूट 3 माइनस tan x प्लस c। So its final answer I equal to 1 upon 2 root 3 into log mod root 3 plus tan x upon root 3 minus tan x plus c और यहाँ मॉडुलस क्लोज कर देना है। So this is the final answer for question number 20। तो डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को आता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं कम समझ में आया है या कोई सिमिलर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली इन द कमेंट बॉक्स योर डाउट्स। एंड अदर थिंग, you should learn all formulae and revise all previous questions which are already completed in the previous videos, previous lectures। क्योंकि मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ कंप्लीट कर रहे हो, तो उसको सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अदर थिंग, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं एवरी डे कि ये चैनल पर आकर के हमें इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स का बहुत ही इजी सॉल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और सभी स्टूडेंट जो भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्वेश्चंस में कहाँ पर उनको डाउट्स है यहाँ पर या कहाँ पर कम समझ में आया, तो यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट हमारे लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and name of the channel Rajendraj Teaching। You can search directly on YouTube channel, YouTube। तो YouTube चैनल पर जा कर के डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू टाइप RAJENDRA अपॉस्ट्रॉफी S मीन्स कॉमा ऊपर और S और उसके बाद स्पेस, फिर टीचिंग लिखोगे TEACHING, तो हमारा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। उसको क्लियर करके फिर आप वीडियोस को देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, you should subscribe the channel, then you will get all new notifications and videos immediately when we upload the video, when we upload the lecture on YouTube, so you will get immediately information if you press bell icon also। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट हमारे सजेशन को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।